लोग लेसन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर वर्ब अववार का कंजुगेशन फिर से आपको एक बार देखना है। जे, आई हैव, यू आर, यू हैव, इला, एला, ही हैज, शी हैज, नू जावू। यहाँ पर नू आबो नहीं बोलना है, नू जावू। वी हैव, वू जावे, यू हैव, इल सो। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, ये जो कंजुगेशन लिखा हुआ है ये गलत है, ये एत्र का है। यहाँ होना चाहिए इल एंड देन ओ एन टी, इल जो और एल जो। दे हैव। प्रीपोजिशंस जो इस लेसन में यूज हुए हैं वो हैं द, which means in, derrière, behind, devant, in front of, sur, on, sous, under, avec, with, sans, without, a means to. Nous difficile, difficult words. Nous sommes, we are, debout, standing. Il parle à Jean. He is speaking to John. या फिर आप कह सकते हैं he speaks to John. Lavez-vous, stand up. Derrière, behind. थोड़ा bien. Very good. Comptez, count. Asseyez-vous, sit down. Jardin, garden. Fleur, flower. Maison, house. Arbre, tree. Oui means yes. Sac is bag. यहां पर आपको ध्यान देना है कि फ्लर फेमिनिन है, मेजो भी फेमिनिन है, आर्ब्र मैस्कुलिन है। यहाँ स्मॉल एम का मतलब फेमिनिन और स्मॉल एम का मतलब मैस्कुलिन होता है, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब बात आती है ट्रांसलेशन की। यहाँ पर फ्रेंच सेंटेंसेस गिवन है, उनको आपको इंग्लिश करना है। Nous sommes 8 étudiants dans la salle de classe. We are 8 students in the classroom. La professeure est debout devant les étudiants. The teacher is standing in front of the students. Il a un livre. He has a book. Il parle à John. He is speaking to John. John, lavez-vous. John, stand up. Est-ce que vous êtes debout? Are you standing? Or is it that you are standing? Oui, je suis debout, mademoiselle. Yes, I am standing, miss. Est-ce que George est aussi debout? Is George also standing? Oui, mademoiselle. Yes, miss. Il est debout devant le tableau. He is standing in front of the blank. Où est le livre? Where is the book? Il est sur la table. It is on the table. ध्यान देना है, ल लिब्र की जगह पर यहाँ पर il यूज हो गया है, ये उसका प्रोनाउन है। ए ऊ ए la table एंड वेयर इज द टेबल, यहाँ पर la table को हटाना है तो l यूज कर दिया गया है। शी इज in front of the students, नहीं, it is in front of the students. Où sont les étudiants? Where are the students? Ils sont derrière les pupitres. यहाँ पर les étudiants को रिप्लेस कर सकते, उसका प्रोनाउन यूज किया गया ILS, masculine plural. Derrière le pupitre. They are in front of the desks. Très bien, Jean. Very good, John. Comptez les étudiants. Count the students. Un étudiant, one student. Deux étudiants, two students. Trois étudiants, three students. Quatre étudiants, four students. Cinq étudiants, five students. Six étudiants, six students. Sept étudiants, seven students. Huit étudiants, eight students. Comptez les garçons. Count the boys. Est-ce qu'ils sont devant les pupitres? Are they in front of the desk?
Oui, mademoiselle. Yes, miss. Ils sont devant les pupitres. They are in front of the desk. Comptez aussi les filles. Also count the girls. Est-ce qu'elles sont derrière le tableau? Are they in front of the blackboard? ध्यान रखना है, दरियर का मतलब इन फ्रंट ऑफ नहीं होता, दरियर मीन्स बिहाइंड, devant मीन्स इन फ्रंट ऑफ. Then no, mademoiselle, no, miss, elles sont devant le tableau. No, miss, they are in front of the blackboard. Très bien, Jean. Very good, Jean. Asseyez-vous. Sit down. तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट. अब हम लोग आगे चलते हैं. इसका नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में आई एल एस एक्सेट्रा लगाना है. और इसको देखते हैं. तो यहां पर आपको देखना है कि ये जो वर्ड है ल गार्सो, ये इनमें से इल, एल, ईएलएलईएस या फिर आईएलएस में से कौन सा होगा. ये मैस्कुलिन सिंगुलर है तो इसकी जगह पर आईएल. अब देखते हैं अगले वाले में ला ताब्ल. ला ताब्ल फेमिनिन सिंगुलर है तो यहां पर इसकी जगह पर ई डबल एल ई लगा देंगे, एल. ले गार्सो ये मैस्कुलिन प्लूरल है तो यहां पर आईएलएस यूज कर देंगे. यहां ले फीए लिखा हुआ है, द गर्ल्स, ये फेमिनिन प्लूरल है तो यहां पर इस गैप में ई डबल एल एस एल लगा देंगे. और यहां पर देखें ले गार्सों ए ले फी. अब यहां मिक्स हो गया, बॉयज और गर्ल दोनों है तो ऐसी सिचुएशन में मैस्कुलिन प्लूरल लगा देते हैं, आई एल एस. देन कम्स नेक्स्ट वन, यहां टेबल फेमिनिन सिंगुलर तो फिर से ई एल एल ई लगा देंगे. यहां पर ललीब्र मैस्कुलिन सिंगुलर तो यहां पर आई एल. यहां पर लीमाज फेमिनिन सिंगुलर है तो यहां पर ई एल एल ई का यूज करेंगे. देन कम्स लेज आर्ब्र. आर्ब्र मैस्कुलिन होता है, मैस्कुलिन प्लूरल है तो यहां पर आई एल एस. देन ले फ्लर, फ्लर फेमिनिन है तो यहां पर फेमिनिन प्लूरल है तो इस गैप में ई एल एल ई एस लगाएंगे. तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो गिवन वर्ड होता है उसका जेंडर और नंबर देख करके और उसके आगे हम उसका प्रोनाउन लगा देते हैं. अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है, फ्लर फेमिनिन सिंगुलर है और आर मैस्कुलिन है, ये एक्सेप्शन है तो इसको आपको याद कर देना है. अब देखते हैं ट्रांसलेशन. आई एम इन द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, je suis dans la salle de classe devant les étudiants. जॉर्ज इज बिहाइंड जीन. जॉर्ज ए बिहाइंड के लिए वर्ड होता है दरियर तो जॉन ए दरियर, सॉरी जॉर्ज ए दरियर जॉन, करेक्ट. तो नेक्स्ट वन इज ही स्टैंडिंग तो इसको या तो आप एस टी और आई एल करके दबू लगा दें या फिर एस्क इल ए दबू कर दें. इज शी स्टैंडिंग आल्सो. एटेल या तो आप ऐसे करते हैं ई एस टी और फिर ई एल एल लगा कर दें, एटेल दबू ओसी, या फिर एस्क एल ए दबू ओसी. वी आर स्टैंडिंग, नु सोम दबू, यू आर स्टैंडिंग आल्सो, क्यू ए दबू ओसी या फिर वूजेत दबू ओसी. द 5 boys are in front of the teacher. Les 5 garçons sont devant le professeur. Are they standing? Est-ce que
एस्किल सॉ दबू, या SONT लगा कर सॉन एल कर दीजिए और उसके बाद दबू लगा दें तभी भी चलेगा। द गर्ल्स आर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। Les filles sont devant la table. Are they standing also? Est-ce que elles sont debout aussi? या फिर आप इसको भी सॉन तेल कर दें, SONT एंड देन ELLES और इसके बाद दबू कर दें उसी। Where is the book? Où est le livre? It is on the desk. Il est sur le pupitre. Where is the chair? Où est la chaise? It is in front of the desk. Chaise is feminine, तो आप कहेंगे elle est devant le pupitre. Where are John and Mary? Où sont John et Marie? They are in front of the blackboard. Ils sont devant le tableau. Where are the pencils and the pens? Où sont les crayons? Où sont le crayon et le stylo? Plural नहीं है. Where are the pencil and the pen? Où sont le crayon et le stylo? They are under the notebook. ये इसके लिए दे के लिए ILS यूज करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये दोनों मैस्कुलिन है। Ils sont sous le cahier. Are you the student? या तो एत बू करें या एचयू लेक्यूजिया या फिर एस लगा करके भी कर सकते हैं, एस का क्यूए लेक्यूजिया या फिर एस का बूजेत एचयूजिया। आई एम आई ए टीचर, एस का जसुई लसर, आई एम आई द टीचर, एस का जसुई लसर। आर दे स्टूडेंट्स, एस का इल्सा les étudiants या फिर sont-ils les étudiants। यहां पर ध्यान देना है un étudiant का मतलब मैस्कुलिन स्टूडेंट और une étudiante फेमिनिन स्टूडेंट। इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड एलेव से, un élève या फिर une élève। तो ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।